मैंने एक्सप्लेन किया था one of is called as a totipotency. Now, what is totipotency? It is the ability of a cells in which they can differentiate and divide into any other type of the body cell. Okay, so from one type of cell we can form any different like many other types of cell, and that is called as a totipotency. And most of the cells which are bearing this particular property of totipotency are called as the stem cells. And then मैंने explain किया था about the pluripotent, multipotent and the unipotent stem cells. After that हमने discuss किया था about the types of the cells, basically mainly based on the complexity level. So it was known as prokaryotes and eukaryotes, right? तो मैंने explain किया था कि okay prokaryotes का structure क्या है and what is the basic structure of a eukaryotic cell. Okay, and then we started with in detail studies about the prokaryotic cells, and then we finish about the part of a cell envelope that is the most like the outermost layer called as a glycocalyx. I hope my voice is clear and आज आवाज का कुछ प्रॉब्लम नहीं है. Just a minute, okay. Dara? Yeah, sorry for that. So कल हमने डिस्कस किया था about the glycocalyx, which is the outermost layer of a prokaryotic cell. तो मैंने तुम लोग को बताया था the glycocalyx can be of two forms. It can be in a form of slime layer, which is a loosely attached kind of layer, or it can be a tightly attached structure called as a capsule. Okay, और फिर मैंने explain किया था about the staining, which is generally used to identify or detect the capsules. Okay. Then I had given a brief about what is a cell wall. Okay. So I hope you all remember that the cell walls of the prokaryotic cells is composed of peptidoglycan, which is basically composed of the two important sugars. I will tell you the structure because it can be मतलब बहुत important हो सकता है for those who are preparing for a NEET. So those people can note down. So peptidoglycan is actually a polysaccharide composed of N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid. ये दो है sugars, ये दो sugars मिलके बनता है peptidoglycan. लोगों को समझा? I will write down in a chat box as well so that you can get the right spelling. So N-acetyl glucosamine, N-acetyl muramic acid. These are the two components which actually makes the peptidoglycan. Peptidoglycan is the polysaccharide. Then मैंने explain किया था about the function of yes. Peptidoglycan, it is made up of these two components. Yes. So it is a polysaccharide basically. मतलब क्या polymer है? So जो दो polymer है ना, that is we all know polymer किससे बनता है? Monomer से. तो पेप्टिडोग्लाइकन के दो मोनोमर्स होते हैं, that is the N-acetyl glycosamine and N-acetyl muramic acid. समझा? Cell wall is made up of that. Yes. तो ये दो कंपोनेंट जो मैंने अभी बताया तुम लोग को, N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid, ये जो दो कंपोनेंट्स है that will form a polymer जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन. अभी समझा? Yes. Yes. Anything else? No. So yeah. So I will proceed. तो मैंने और बताया था about the mechanical strength वाला property that the cell wall gives mechanical strength to the cell. Okay. And then मैंने start किया था about the ground staining, but हमने complete नहीं किया था. So till now, anyone, any doubt?
No. Cool. So I hope you are going good. So yeah, so now we are starting one of the important concept, that is a differentiation of the bacteria based on a cell wall. Okay. तो ये जो सेल वॉल के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया था, that was first done by the scientist known as Hans Christian Gram. इन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक स्टेनिंग मेथड निकाला था. व्हाट इज स्टेनिंग? बेसिकली कलर करना बैक्टीरिया को, बिकॉज बैक्टीरिया आर नॉट विजिबल बाय द नेकेड आइज. इवन अंडर, अगर मुझे उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व देम बिकॉज दे आर नॉट कलर्ड. उनका ऐसा कोई कॉन्ट्रास्टिंग कलर नहीं कि हम लोग को फटाक से दिख जाए. सो दैट्स वाई अगर मुझे उनको अच्छे से देखना है, ऑब्जर्व करना है, it is a very preferable way. It is very important, and we can say preferred to. So this coloring method is called as a staining. So हम लोग The different repeat different once biological voice stains. is breaking. Yes, sir. Voice. Voice is breaking. Okay, I'm so sorry because I hope. Okay, so मैं क्या बोल रहा था कि स्टेनिंग क्या होता है. तो मैं बोल रहा था कि बैक्टीरियाज आर नॉट रियली विजिबल बाय द नेकेड आइज. हम लोग अपनी आंखों से बैक्टीरिया को देख नहीं सकते. हम लोग कैसे देख सकते हैं? बाय यूजिंग अ माइक्रोस्कोप. यस, बट देन माइक्रोस्कोप के अंदर भी बैक्टीरिया को देखना इज नॉट दैट इजी बिकॉज दे आर नॉट कलरफुल. ऐसा नहीं है कि वो एक लाल है, एक हरा है, एक नीला है, ऐसे नहीं होता. दे आर ऑलमोस्ट कलरलेस अंडर माइक्रोस्कोप ऑल्सो, एंड दैट्स वाई उनको ऑब्जर्व करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो अगर मुझे उनको इजीली ऑब्जर्व करना है तो व्हाट कैन आई डू? मैं उनको कलर कर सकता हूँ. तो ये जो मेथड है टू कलर दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल्स इज कॉल्ड एज स्टेनिंग. और ग्राम वाज द फर्स्ट वन जिसने बैक्टीरिया के सेल वॉल्स को स्टेन किया था, एंड दैट्स व्हाई द स्टेनिंग मेथड इज कॉल्ड एज ग्राम स्टेनिंग. ओके. तो बेस्ड ऑन दैट कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सा कलर का स्टेन लेता है, there are two main types of bacteria, gram positive bacteria and gram negative bacteria. अभी ऑन व्हाट बेसिस ग्राम ने बोला कि हाँ ये वाला बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और ये वाला बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है, उसको कैसे समझा? सो ही एक्चुअली स्टडीड द सेल वॉल का स्ट्रक्चर. ओके, नाउ हाउ डिड ही स्टडी द सेल वॉल का स्ट्रक्चर? तुम लोग को सबको ये ऊपर वाला इमेज दिख रहा है सबसे पहला, जहाँ पे Yes. लिखा है Yes. ग्राम. So this is the structure of a typical bacterial cell, or we can say prokaryotic cell. So there are two major types of bacteria. तो कुछ बैक्टीरिया का सेल वॉल ना ऐसे होता है, as shown in the first image, और कुछ बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है as shown in image number 2. Now what can you see? तो मैंने क्या बोला सबसे पहले से बनता है. Voice break हो रहा है sir. Sir, voice break हो रहा है. Just give me a minute, I will do something. Okay, please don't miss. सर ब्रेक हो रहा है वॉइस, कुछ बहुत भी break हो रहा है. कुछ भी नहीं बहुत सुनाई break. दे रहा. Yes sir. यस सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. I am not talking anything, just give me a minute.
ओके अभी अगर नहीं हुआ स्टिल देयर बी प्रॉब्लम आई होप नाउ इट शुड आई एम ट्राइंग ऑल एक के बाद एक एंड नथिंग इज वर्किंग आउट सो एटलीस्ट प्लीज कोऑपरेट थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम होगा तो आज के दिन मैनेज करो विद डाउट आई विल बी क्लियरिंग और व्हाटएवर जस्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन होगा आई विल गिव एनी टाइम सो डोंट वरी अबाउट इट कुछ मिस हो रहा है ओके आई होप नाउ आई एम ऑडिबल just try to understand what I'm trying to convey is am I clear now Yes. Yes. Yes, sir. okay so structure of cell wall like in 15th time I'm saying the same thing okay no worries so ये जो डायग्राम है ना अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल यहाँ पे यू कैन सी ब्लू पर्पल स्ट्रक्चर राइट ये ब्लू पर्पल जो स्ट्रक्चर है ना दैट इज नथिंग बट अ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ओके सो नाउ यू कैन सी इन फर्स्ट इमेज द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर मतलब ये जो ब्लू पर्पल का जो लेयर है दैट इज क्वाइट थिक राइट सबको दिख रहा है बड़ा दिख रहा है हम लोग को ऑलमोस्ट 1 2 3 4 4 लेयर्स है ना Yes. Yes. बट जो सेकेंड इमेज में उसमें कितना इमेजेस है सॉरी कितना लेयर्स है 2. 2. yes so that is the major difference between a gram positive bacteria and gram negative bacteria gram positive bacteria has a thick layer of peptidoglycan and gram negative bacteria has a thin layer of peptidoglycan सबको समझा ये बात सबसे Yes, मेजर sir. Yes, sir. नाउ और एक डिफरेंस है व्हाट कैन यू टेल मी लुकिंग जस्ट लुक एट द डायग्राम एंड टेल मी और Voice is breaking, sir. वॉइस इज ब्रेकिंग Yes, sir. वॉइस इज ब्रेकिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा है Yes, sir. एक सिंगल वर्ड भी समझ में नहीं आ रहा है सर ओके अभी क्लियर है सर. सर स्लो बोलो तो अभी शायद से नहीं होगा. Yes, sir. स्लो बोला थोड़ा. यस ओके सो मैंने बोला कि just look at the diagram number 1 that is a gram positive bacteria and diagram number 2 that is a gram negative bacteria तो अभी मैंने बोला सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था अबाउट द Peptidoglycan. Yes. यहाँ पे बड़ा था यहाँ पे छोटा था ओके बट व्हाट कैन यू सी और क्या डिफरेंस दिख रहा है जो यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है LPS. Lipoprotein. LPS. yes Lipoprotein. so gram negative yes I got it so in gram negative bacteria वहां पे एक एक्स्ट्रा लेयर होता है ऑफ अ लिपोपॉलीसैकेराइड कॉल्ड एज LPS बट ग्राम पॉजिटिव के पास वो नहीं होता है Absent. okay so that is another difference so yeah it is absent in case of gram positive bacteria so based on these two important properties that is the layer of a peptidoglycan and the presence or absence of a LPS layer the bacteria are classified as a gram positive bacteria and gram negative bacteria तब जब ये ग्राम जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना तो उसने क्या किया था he used two stains मतलब उसने दो कलर्स यूज किया था एक था पर्पल और दूसरा था पिंक तो उसने क्या ऑब्जर्व किया ये जो ग्राम पॉजिटिव कलर के मतलब ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है ना दैट विल टेक अप द पर्पल कलर एंड दैट विल बी ऑब्जर्व्ड एज द पर्पल कलर के डॉट 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 तो दिस आर द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया व्हिच आर स्टेन्ड बाय अ क्रिस्टल वोलेट नाम का एक स्टेन वी विल नॉट गो इन डिटेल अबाउट दिस बट जस्ट टू नो ग्राम पॉजिटिव दिखते हैं पर्पल कलर के और ग्राम नेगेटिव दिखते हैं पिंक कलर के इतना समझा Yes, sir. Yes. cool so now let's move ahead okay फिर भी अगर एक बार तुम लोग को नहीं समझा है इन नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा ब्रीफ दूंगा मैं हेलो सर. बोलो वो सच में पर्पल और पिंक होता है क्या? क्या फिर ओनली ग्राम ने ये बताया इसे? नहीं वो सच में पर्पल और पिंक नहीं होता है वो क्या होता है ग्राम ने दो कलर्स यूज किए थे वो कलर्स का नाम था क्रिस्टल वॉयलेट जो कि पर्पल कलर का था तो उसने ऑब्जर्व किया कि जब भी वो पर्पल कलर यूज कर रहा है ना तब ओनली ग्राम पॉजिटिव ऑब्जर्व हो रहे हैं मतलब सिर्फ ग्राम पॉजिटिव कलर क्या बैक्टीरिया कैन टेक अप वॉइस इज ब्रेकिंग. मतलब ओके सो उसने दो कलर्स यूज किए थे
पर्पल दैट्स व्हाई वो दिख रहे हैं। सो उसने देखा कि जब भी वो यूज कर रहा है ओनली ग्राम, वॉइस इज ब्रेकिंग। Voice is breaking. जब भी वो सर पिंक वॉइस यूज कर, कंटिन्यू ब्रेकिंग हो रही है। सर आप एक काम करो, आप फिर से लॉगिन हो, फिर से लॉगिन हो। यस सर, रीलॉगिन। यस सर। या बैक्टीरिया है वो पिंक कलर के दिखते हैं। Why? Because they have differences in their cell wall. क्या डिफरेंस है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव अ थिक लेयर ऑफ पेप्टोग्लाइकन, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैज अ थिन लेयर ऑफ पेप्टोग्लाइकन। और ग्राम पॉजिटिव के पास एलपीएस लेयर नहीं होता है, ग्राम नेगेटिव के पास एलपीएस लेयर होता है। ओके, so this is all about the cell wall of a prokaryotic cell. Now the third and the innermost layer of a cell envelope in case of prokaryotes is cell membrane. Now what is cell membrane? Cell membrane is the innermost layer as I mentioned, और वो किससे बनता है? Phospholipid bilayer. तो ये जो लेयर है वो किससे बना हुआ होता है? लिपिड से। ओके, तो सबसे अंदर जो था, सॉरी सबसे बाहर वाला जो लेयर था दैट इज अ ग्लाइकोकैलिक्स वाज पॉलीसैकेराइड। उसके बाद वाला जो था दैट वाज आल्सो अ पॉलीसैकेराइड। एंड नाउ यस, सो प्रणय यू आर राइट, टिकोइक एसिड इज आल्सो absent in gram negative, that is correct. But for your thing, we don't need to go in a detail about the gram bacteria. But if you all want, in a next lecture, I can give you entire gram staining का principle. कम से कम 1000 बार तो किया रहेगा मैंने अभी तक, so that is not a big deal. But I thought कि it will be very much like too much for you all. तुम लोग को बहुत ज़्यादा डोज हो जाएगा इसलिए. But if you all are interested, in the next class we will discuss about the gram staining again in detail. Okay, no worries about that. But that's the correct one. Now coming back to the cell membrane. So in case of prokaryote, the cell membrane is made up of phospholipid bilayer. So this is the way actually the cell membrane looks like. So आपको दिख रहा है डायग्राम? तो ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, that is called as a head of a lipid. और बीच में दिख रहा है तुम लोग के साथ like thread like structure, that is called as a tail of a lipid. So in case of the phospholipid bilayer, the head is actually called as a hydrophilic head. Now what is hydrophilic? Anyone can tell me? इसका मतलब क्या होता है? Hydrophilic. वाटर। Yes. Liquid So को attract hydro कर- मतलब पानी. Yes, yes, yes. So liquid in sense यहाँ पे मैं hydrophilic बोल रहा हूँ. तो hydro मतलब water और philic मतलब loving, मतलब जो पानी को जो which is the thing which will attract the water or it will comfortable with the water. So water loving thing is called as hydrophilic. So ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है सबको, जो बॉल वाला स्ट्रक्चर, बॉल्स ऑल द हेड्स ऑफ द लिक्विड बेसिकली आर ऑल हाइड्रोफिलिक इन नेचर, मतलब ये पानी के साथ कांटेक्ट बना सकते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, वो लोग अच्छे खासे से पानी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। बट इनके जो टेल्स होते हैं ना, जो अंदर के साइड है, दैट आर हाइड्रोफोबिक। नाउ व्हाट इज हाइड्रोफोबिक? हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब हेटिंग, मतलब जिसको पानी पसंद नहीं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इसके टेल्स है ना अबाउट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, they are hydrophobic in nature, they don't love water, उनको पानी अच्छा नहीं लगता, that's why they are present at the interior side. तो तुम लोग देख सकते हो ये एक लेयर है, उसका भी हेड्स आउटर साइड पे है, टेल्स अंदर है, ये दूसरा लेयर है, उसका भी हेड्स आउटर साइड है, टेल अंदर है, so that they cannot interact with the water. Okay, so this is the typical structure of a cell membrane, उसको हम लोग बोलते हैं phospholipid bilayer. Why bilayer? because दो लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। now इसका फंक्शन क्या है? इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज टू गिव प्रोटेक्शन टू द सेल, और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज टू हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल। अभी सेल है, मतलब सेल को क्या क्या लगता है, उसको खाना चाहिए, उसको पीना चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो इट विल रिक्वायर ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन बायोमॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सब में क्या काम करता है? द सेल मेम्ब्रेन विल हेल्प अस, हाउ इट विल facilitate the transport of molecules. Okay, so there are two important functions of the cell membrane.
सबसे पहला इज प्रोटेक्शन टू द सेल और सेकेंड वन इज helping in a intercellular transfer of molecules. I hope it is clear. सर सेकंड पॉइंट फिर से बोलो. फंक्शन रिपीट करो ना सर एक बार फिर. और सेल एनवेलप किस काम में आता है? टू गिव प्रोटेक्शन टू द सेल. सो ऑब्वियसली इवन सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स protection to the cells. It forms a kind of covering, right? It gives protection to the cell. और दूसरा point is the cell membrane actually helps in a transport of molecules. तो अभी सेल है, सेल को अपना ग्रोथ के लिए, अपना डेवलपमेंट के लिए क्या क्या लगता है? इसको लगता है, मतलब उसे लगता है डिफरेंट ग्रोथ मॉलिक्यूल्स, लाइक उसको प्रोटीन्स चाहिए, उसको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, उसको लिपिड्स चाहिए, विच विल हेल्प द सेल टू ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो, राइट? उसको भी बढ़ना रहता है. इट्स नॉट लाइक सेल को कुछ खाने की जरूरत नहीं है. हम लोग जो खाते हैं अल्टीमेटली वो कहाँ तक पहुंचता है? अपने सेल्स तक ही पहुंचता है, राइट? तो वो सेल्स तक पहुंचने के लिए भी देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ फैसिलिटी ना, कि जो हम लोग खा रहे हैं वो सेल तक पहुंचे. बिकॉज अगर हम लोग देखें सेल का जो एनवलप है वो कितना स्ट्रांग है. सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके अंदर वापस से सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सेल को टू ट्रांसफर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. ओके, बट देन सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली हैव सर्टेन स्पेशल प्रोटीन्स. तुम लोग को दिख रहा है ये जो पर्पल कलर का थिंग दिख रहा है यहाँ पे? Yes. These all are proteins. So these are called as channels or a tunnel protein. वो help करते हैं in a transport of different molecules like carbohydrate, proteins and lipids, जो सेल को काम आते हैं for growth and development. समझे अभी फंक्शन? यस सर. Good. Yes. So तुम लोग को 2 पॉइंट्स याद रखने हैं in a function of cell membrane, that is protection, और second one is a helping in a intercellular transfer of molecules. Okay. Now the third point comes like ये जो in bacteria ना, the cell membrane actually shows थोड़ा internal folding. तो तुमने देखा रहेगा इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे उसका इंटरनल मेम्ब्रेन जैसे अपने आप थोड़ा फोल्डेड रहता है, उसको हम लोग क्रिस्टल वगैरह बोलते हैं, थोड़ा सा इन दैट like that only, but not very much similar to mitochondria. So even in this case the cell membrane actually shows थोड़ा सा इनफोल्डिंग internally. Okay, और उसको हम लोग बोलते हैं मेसोसोम्स. ओके, तो ये जो मेसोसोम्स बनता है by the folding of a cell membrane are very 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 important. सर एक बार Why? फिर से Because रिपीट they कीजिए carry ना. out. Yeah, I will, don't worry. Yeah. So मैंने क्या बोला कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उसमें ओके प्रोटेक्शन और ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तो उसके इम्पोर्टेंट 2 प्राइम फंक्शंस तो है ही, वो तो उसको करने ही. इन एडिशन टू दैट देयर आर सम एडिशनल फंक्शंस जो सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म करता है. नाउ वो क्या होते हैं? तो द सेल मेम्ब्रेन शोज इनफोल्डिंग, मतलब क्या? उसका जो इंटरनल साइड होता है, इंटरनल पार्ट जो होता है दैट गेट्स फोल्डेड होता है इंटरनली. ओके, और ये जो फोल्डेड सेल मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेसोसोम्स. क्या बोलते हैं उसको? मेसोसोम्स. MESOSOME, मेसोसोम्स. Now this mesosomes is very very important part. Why? Because it actually helps in a cell wall formation, cellular respiration and even DNA replication. So these mesosomes, which are actually a folding of a cell membrane, are involved in a 3 important functions, that is cell wall formation, cellular respiration and DNA replication. समझा? यस Yes. सर. Okay. Now, the last thing of the cell membrane is in some bacteria, not all bacteria, because there is a huge variety of bacteria. मतलब इतने सारे bacteria है, इतने सारे types है कि we are not even very much aware कि कितने, हम लोग का नंबर भी नहीं है उतना. जैसे हम लोग बोलते हैं कि ओके इंडिया का पॉपुलेशन इतना है, वैसे हम लोग बोल भी नहीं सकते कि पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इतना ज्यादा है, बिकॉज they are beyond counting basically. Okay. But there are a typical class of bacteria जिसको हम लोग बोलते हैं photosynthetic cyanobacteria. Now the name itself, photosynthetic cyanobacteria, इसका फंक्शन क्या होगा? Why it is called as photosynthetic basically?
बिकॉज ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग प्लांट्स में देखते हैं। इन द सेम वे इवन दिस बैक्टीरिया कैरीज a chlorophyll like pigment, and that's why they are called as a photosynthetic bacteria. Now that's why अभी उनके पास ये जो pigments है, obviously they need to transfer this particular pigments and all, right, from one part of the cell to the next part of the cell. So this particular bacteria shows a typical structure called as a chromatophore, which is nothing but a extension of a cell membrane. Okay, and this chromatophores जो है, they are actually involved in a transport of this particular photosynthetic pigment. So ये जो chromatophores रहेंगे, which are actually a extension, मतलब a part of the membrane comes out. Okay, and they actually help in carrying the photosynthetic pigments. समझो? Yes. Yes, so it is not very difficult, you will understand simple. Okay, अगर ऐसा कोई टर्म है जो तुम लोगों को समझ में नहीं आया, like DNA replication and all, so I will discuss that in a detail when we will talk about the nucleus and the DNA in a eukaryotic cell. तो तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा. In case of prokaryotes, it is not in that detail for you. तो हम लोग इतना डिटेल में जाएंगे नहीं. Now, next part includes, apart from now हमने क्या क्या देखा, हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम द सेल एनवलप, राइट. बट इफ यू रिमेंबर द डायग्राम जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तब मैंने बोला समथिंग कॉल्ड सिलिया, फ्लैजेला, पाइलाई, फिम्ब्रिए. आई थिंक मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, बट एक बार वापस से. ओके, सो देयर आर सम कॉल्ड एज ऑर्गेनल्स लाइक फ्लैजेला, सिलिया, पाइलाई एंड फिम्ब्री. All these are involved in certain function in a prokaryotic cell. So basically जो cilia and flagella होते हैं, they help in a motility of a bacteria. तो मैंने बोला था कि they can move the flagella and the bacteria can move, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकता है. So that's why it is called as a motility organelles, जो कि बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करते हैं. Now ये जो flagella होता है, इसमें देखा जरा टेल लाइक स्ट्रक्चर. ये जो फ्लैजेला है, सिंगुलर इज अ फ्लैजेला, इसका भी 3 पार्ट रहता है. सबसे अंदर ना, जो सबसे अंदर जो सेल मेम्ब्रेन में फंसता है ना, द वेरी इनरमोस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द बेसल बॉडी. क्या बोलते हो उसको? बेसल बॉडी. फिर उसके बाद होता है हुक, और द थर्ड पार्ट इज बेसिकली अ फ्लैजेलम. तो बेसल बॉडी और जो फ्लैजेलम है उसको जो कनेक्ट करता है उसको हम लोग हुक बोलते हैं. तो basically there are 3 parts of the flagella. The flagella is composed of 3 parts. The basal body, which actually provides the force for the movement. Okay, then hook, which connects the basal body to the filament, which is the longest part, and then finally the flagellum filament. Okay, so these are actually helping in a movement of a bacteria. Then मैंने अब बताया था about the pili, which is actually involved in the इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन. तो अगर एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया के साथ कांटेक्ट करना है, देन इट विल बी डन बाय पाइलाई. ओके, एंड द थर्ड मोस्ट थिंग इज अ फिम्ब्रे. तो फिम्ब्रे मैंने बोला था, इट इज आल्सो स्मॉल थिंग्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ बैक्टीरिया which helps in adhesion and attachment. So that's what they are saying. It is helping in a clinging to support. तो वो अपने आप को substratum में अटैच कर सकते हैं. Okay. So did you understand the function of the flagella, pili and fimbriae? Yes. Yes. Yeah. What is the function of flagella? Movement. Moment. Yes. Pili का क्या function है? Intercellular communication. Third one is the fimbriae, which is involved in Adhesive. yes, adhesion and attachment, basically clinging for perfect. Now, सर yes. पाइलाई का फंक्शन एक बार बताए ना फिर से. Okay. So I will not try to draw it. I hope it will work here. दोनों को व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है? Yes. 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 Okay.
Okay, okay. So let's say this is my bacteria. One, this is my bacteria. Okay. It is a chromosome of a bacteria. It is a chromosome of another bacteria. Okay. And this is something called as plasmid. This is something called as plasmid. Okay. और अभी यहाँ पे उसके बॉडी पे ना स्मॉल स्मॉल पाइलाइज होते हैं. तो ये ग्रीन वाले जो है ना दैट इज पाइलाई. तो ये क्या करेगा जब भी उसको कुछ कम्युनिकेशन करना होगा दिस पाइलाई एक्चुअली फॉर्म्स अ कनेक्शन बिटवीन टू बैक्टीरिया. ओके. So they can connect via pili, or many times this pili actually help in a transfer of this plasmid. तो ये plasmid यहाँ से यहाँ तक जा सकता है और ये वाला plasmid यहाँ से यहाँ तक आ सकता है. So this is how they exchange the information, and that's why the pili is involved in a intercellular communication purpose. तो अभी मैंने बोला कि plasmid they can even exchange some other materials like food type of material. They can do such things. So this is called as pili. So ये जो surface पर रहता है structure that is called as pili, and it is involved in a intercellular Hello, structure. sir. So like intercellular. हाँ बोलो. एक ही सेल में होगा या अलग अलग? इंटरसेल्यूलर मतलब एक ही सेल में ना? नहीं, इंटरसेलुलर मतलब दो सेल्स के बीच में. इंट्रासेलुलर मतलब एक ही सेल में. ओके. इंट्रा मतलब विद इन अ सेल. इंटर मतलब दो के बीच में. ओके सर. And sir, fimbre. फिमरे इज लाइक समथिंग लाइक, देखो ऐसे ऊपर ना उसके कुछ तो पार्ट रहेगा like the cilia and fimbre, and it will help in a attachment. तो fimbre is like something like जो उसको अटैचमेंट में हेल्प करेगा. सो दिस लाइक लेट्स से ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है दिस आर द फिम्ब्रे, और यहाँ पे सबस्ट्रेटम रहेगा ऐसा कुछ. तो लेट्स से सरफेस है, तो ये फिम्ब्रे है ना उसको अटैचमेंट में हेल्प करेंगे. तो बैक्टीरिया विल गेट अटैच टू इट, एंड दैट वन इट विल फॉर्म सम काइंड ऑफ लेयर ऑन अ बैक. सो इट विल फॉर्म अ सम काइंड ऑफ लेयर ऑन दैट सरफेस. तो लेट्स से मैंने बैक्टीरिया पे पानी फेंक दिया, मतलब आई डोंट नो कि वहाँ पे बैक्टीरिया है या नहीं है, बट मैंने इतनी सरफेस पे पानी फेंक दिया. और अगर उस बैक्टीरिया के पास फिम्ब्रिया रहेंगे ना, इवन इफ मैंने पानी फेंका इट विल बी एबल टू अटैच टू द सरफेस. अनलेस एंड अंटिल मैं बहुत कुछ फोर्स से पानी फेंक रहा हूँ, मैंने साबुन बिबन डाला है, तभी शायद वो बह के जाएगा. अदरवाइज इट विल बी एबल टू अटैच टू द सबस्ट्रेटम और सरफेस. समझ रहे हो? हेलो. Yes. Yes. And then third one is the flagella, which is like longest organelle जो उसको एक्चुअली मूवमेंट में हेल्प करता है. तो फ्लैजेला एक्चुअली ऐसे सर्कुलर मोशन दिखाता है, रोटेटरी मोशन दिखाता है, और बिकॉज ऑफ दिस द बैक्टीरिया कैन मूव, आगे आगे जा सकता है. क्लियर? Yes. Yes. सो अभी मैंने इतना ड्रॉ कर ही दिया है. सो आई विल टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. तो मैंने बोला था कि दिस समथिंग इज कॉल्ड प्लाज्मिड. So plasmid is also one type of DNA in bacteria, but it is not really a part of a true DNA जो हमने यहाँ पे बनाया है ऑलरेडी. एक सिंगल, मैंने कल बोला था कि बैक्टीरिया के पास देयर इज अ सिंगल सर्कुलर DNA, उसके पास सिर्फ एक ही क्रोमोसोम रहता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्रोमोसोम बैक्टीरिया आल्सो हैव सम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA. उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA. मतलब क्या? क्रोमोसोम के अलावा जो भी प्रेजेंट रहेगा डीएनए उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और इट इज नोन एज प्लाज्मिड. तो ये प्लाज्मिड है ना, उसके पास ना अलग अलग जीन्स हो सकते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, या फिर लेट से उसके पास ऐसा कोई जीन हो सकता है दैट कैन डिग्रेड वेरी कॉम्प्लेक्स केमिकल. लेट से अभी देयर इज अ केमिकल नोन एज लेट से डाइज. अभी हम लोग को पता है, सबने देखा रहेगा वो शहर के हम लोग के यहाँ से जो निकलता है एक नाला बड़ा सा, there are so many dyes in like कलर वगैरह रहता है, बहुत सारा केमिकल पड़ा रहता है, राइट? सो ना वहाँ पे जो बैक्टीरिया अगर रहेंगे ना, that bacteria will have a plasmid which will contain a gene which will be able to degrade that dyes and all.
तो वो उसको ब्रेक डाउन कर सकता है, विच इज नॉट पॉसिबल बाय नेचुरल प्रोसेस। तो ये सब ऐसे प्रॉपर्टीज जो उसको रहता है बैक्टीरिया का, जो भी स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है, जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, such properties can be present in a plasmid. We will discuss about the plasmid in a part जहाँ पे मैं explain करूँगा about the DNA of a bacteria. But did you understand the thing about the Fimbriae, flagellum and the pili? Yes. Good. Now, sharing the screen again. तो अभी हमने क्या क्या देखा, हमने देखा क्योंकि बैक्टीरिया इज द सिंपलेस्ट सेल, बट उसका जो सेल एनवलप होता है दैट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। तो कौन कौन से 3 लेयर्स होते हैं, कौन बताएगा मुझे? हेलो, मैंने बोला कि बैक्टीरिया का सेल एनवलप जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। तो व्हिच आर दिस 3 लेयर्स जो बैक्टीरिया का सेल एनवलप बनाते हैं? Outer glycocalyx, outer middle cell slime wall, layer, and inner cell wall, plasma membrane. plasma membrane. Yes. Yes, so absolutely correct. So that is the important thing. उसके बाद हमने देखा कि the cell also can contain some motility organelles and even the pili and the fimbriae. Now और अभी तो ये सब तो बाहर का बाजू हो गया, सब उसका एक्सटर्नल प्रॉपर्टी हमने देख ली। Now let's enter inside the cell. तो सेल के अंदर क्या क्या होता है? So in a bacterial cell, or let's say in a prokaryotic cell, the cell contains cytoplasm inside the cell. Now what is the cytoplasm? It is a fluid-like structure. Okay, kind of matrix जहाँ पे different enzymes, proteins वगैरह present होते हैं. Now along with these particular things, cytoplasm में एक important organelle present होता है, and that is called as a ribosomes. Okay, so the prokaryotic cells shows presence of a ribosomes, which are very important organelle. Why? Because the ribosomes are involved in a synthesis of different proteins. Okay, ribosomes are involved in a synthesis of different proteins, and that's why they are also known as a protein factory of a cell. क्या बोलते हैं उसको? Protein factory. of Yes, because they are involved in a synthesis of different proteins. Okay, so ये जो ribosomes है ना, उनको study किया गया था कि what is the difference between the ribosomes of a prokaryote and what is the difference between the ribosome of a eukaryote. Okay, so while studying to classify it, they had done some kind of studies called as sedimentation studies. Now what is sedimentation? It is kind of experiment जहाँ पे हम लोग उसका settling कितना fast वो settle होता है वो देखते हैं. What is settling? Let's say मेरे पास एक पानी है, एक बाउल में मैंने पानी लिया है और मैंने उसमें मिट्टी मिक्स कर दिया. After some time मैंने उसको वैसे ही रख दिया. After some time जो भी पूरे पानी में मैंने मिट्टी मिक्स किया था वो नीचे सेटल हो जाएगा. So that is called as sedimentation or settlement. So even the same thing was tried with the राइबोसोम, बट ना अभी वो कितने फास्ट सेटल होता है और कितने एक्सटेंट तक सेटल होता है वो भी स्टडी किया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ सेडिमेंटेशन रेट. ओके, मतलब कौन कितना फास्ट और कितने हद तक वो सेडिमेंट हो सकता है वो स्टडी करना. और ये जो हम लोग स्टडी करते हैं उसका यूनिट होता है स्वेडबर्ग यूनिट. तो तुम लोग भी सुना रहेगा 70s, 80s, 13s. तो ये जो S रहता है इन राइबोसोम का नंबर, that stands for a Swedberg. Now why Swedberg? Because Swedberg was the scientist जिसने actually ये सब experiment perform किए थे. So in due respect to the Swedberg, the unit is known as Swedberg units. Okay. So in case of bacteria, the ribosome has a 2 subunits. What do you mean by 2 subunits? मतलब 2 पार्ट रहते हैं, एक बड़ा पार्ट एक छोटा पार्ट. जो बड़ा पार्ट रहता है उसको बोलते हैं हम लोग 50s सब यूनिट ऑफ अ राइबोसोम, और जो छोटा पार्ट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं 30s सब यूनिट ऑफ अ राइबोसोम. एंड इन ऑल टोटल जो बैक्टीरिया का राइबोसोम होता है दैट इज अ 70s टाइप.
Did you understand this? सर 50 और Yes. 30 मिलके 80 हो यस सर, जाती है। 80 हो 80 रहा होगा है, ना? तो फिर 70 कैसा? यस 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 सो इट इज नॉट बेस्ड ऑन कि वो 50 है और 30 है, दोनों को मैंने ऐड कर दिया और वो 70 हो गया, सॉरी वो 80 हो गया, वैसे नहीं होता। तो उसने क्या किया, उसने मैंने क्या बोला कि राइबोसोम 2 सब यूनिट से बनता है। तो उसने सबसे पहले सिर्फ उसका लार्जर सब यूनिट को स्टडी किया और उसने देखा कि जो लार्जर सब यूनिट है दैट इज एक्चुअली सेटलिंग एट द 58 रेट से, मतलब उसका सेडिमेंटेशन रेट इज द 50s। ओके, देर इज नथिंग टू रिलेट, लाइक तुम लोग को उसको ऐड नहीं करना है, उसको सब्सट्रैक्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ एक यूनिट दिया गया है। देर इज नो रिलेशन ऑफ दिस 50s विद द 70s के साथ, कुछ नहीं रिलेशन उसका। ऐसा नहीं है कि 50 और 30 को मैंने ऐड किया और 70 है, ऐसा नहीं होता। हर एक का एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है। तो जब उसने लार्जर सब यूनिट को स्टडी किया तो उसका सेडिमेंटेशन रेट वाज 50s। ओके, फिर उसने वापस से स्मॉलर सब यूनिट को स्टडी किया, उसका सेडिमेंटेशन रेट वाज 30s। और जब उसने पूरा स्टडी किया उसका सेडिमेंटेशन रेट वाज 70s। तो यहाँ पे कहीं पे भी एडिशन नहीं हो रहा है, ये सब इंडिपेंडेंटली स्टडी किया गया था, समझ रहे हो? In case of eukaryote, Yes, sir. in case of eukaryote, you will find ATS type of ribosome. So there is actually ATS ribosome, but उसके भी जो दो सब यूनिट्स रहते हैं, that is 40 and 60. You cannot say कि वो 100 टाइप का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। Still it is a ATS ribosome type. Okay, so don't try to add up the things. These are very independent studies जो उसने परफॉर्म किया था, और उनका ऐसे एडिशन नहीं कर सकते हम लोग। Okay, that is not possible. ओके, क्लियर? तो तुम्हें क्या याद Yes. तुम्हें याद रखना है कि बैक्टीरिया के पास जो राइबोसोम है दैट इज अ 70s टाइप ऑफ अ राइबोसोम। ओके, नाउ finally there is one part which is actually not a part of a lesson, but they have kept given it as a always remember thing, so it is mainly for you all to read up. ओके, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू फ्रॉम माई साइड सो दैट तुम लोगों को कुछ कंफ्यूजन ना रहे, बिकॉज उन लोगों ने वहाँ पे बहुत कुछ मेंशन किया है अबाउट द डीएनए, अबाउट द थीटा मॉडल, अबाउट द हिस्टोन एंड ऑल। तो आई विल सजेस्ट आज के आज ही सब लोग एटलीस्ट जाके वो एक बार पढ़ो। ओके, यू हैव टू रीड दिस थिंग्स एंड वी विल डिस्कस दिस पार्ट टुमारो। तो तुम लोग एक बार पढ़ के आओ, आई एम वेरी श्योर तुम लोगों को कुछ नहीं समझने वाला उसमें से, अगर समझा आई विल बी वेरी हैप्पी। ओके, बट एक बार जस्ट रीड करो, थोड़ा तुम लोग को समझा कि वॉट एवर आई विल बी एक्सप्लेनिंग टुमारो वो टर्म्स वहाँ पे है या नहीं। ओके, तो यू आर सपोज टू रीड दिस टुमारो एंड कम, एंड देन हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? सब लोग पढ़ के आओगे ना? Yes. Yes, sir. Yes. यस It सर। is, it is just a small para, so not a big thing. And then I will explain this. Okay, so I will